اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ جس طرح ویورز آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنرل رولز آف ایویڈنس کو پڑھ رہے ہیں، اور جنرل رولز آف ایویڈنس کو ہم نے قانون شہادت آرٹیکل 1984 کے تناظر میں پڑھنا ہے کہ ایویڈنس سے متعلق قانون شہادت آرٹیکل 1984 میں وہ تمام قواعد و ضوابط درج کر دیے گئے ہیں کہ ایویڈنس کس طرح ہوگی، کن کن معاملات میں کن کن ایویڈنس کو ایڈمیسیبل سمجھا جائے گا اور کن معاملات میں ان ایڈمیسیبل ہوگا۔ ایویڈنس ہے تو اس کی کائنڈز جو میجر ہیں، دو پرائمری اینڈ سیکنڈری ایویڈنس، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایویڈنس اینڈ اٹس ٹو میجر کائنڈز وچ آر کالڈ پرائمری ایویڈنس اینڈ سیکنڈری ایویڈنس۔ ویورز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ قانون شہادت آرٹیکل 1984 کا وہ ٹاپک ہے کہ اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر پورا قانون شہادت سمجھ میں نہیں آ سکتا، چاہے فوجداری وکالت ہو یا سول وکالت، یا اگر کوئی دیگر پروفیشن، اسی طرح جوڈیشری اور تمام دوسرے قانونی ادارہ جات جن میں لاء کا عمل دخل ہے، اس میں قانون شہادت بہت اہمیت اختیار کرتا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو چاہے سول مقدمہ چل رہا ہو یا فوجداری مقدمہ چل رہا ہو، اس مقدمے کا فیصلہ ایویڈنس پر ہوتا ہے، اور ایویڈنس کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے، کن واقعات میں کس طرح کی ہونی چاہیے، ڈائریکٹ ہونی چاہیے، اورل ہونی چاہیے، ڈاکومنٹری ہونی چاہیے، پرائمری ہونی چاہیے، سیکنڈری ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں، یہ تمام قانون ہمیں قانون شہادت آرٹیکل 1984 بتاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آنے والے دنوں میں سول ججز کے ایگزام ہوں یا چاہے ASJ کے ایگزام، تو اس میں بھی یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اکثر یہ سوال کویشچن پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، اٹس کائنڈز، پرائمری ایویڈنس اینڈ سیکنڈری ایویڈنس۔ ریکیپ میں آپ کو دیتا چلوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے اورل ایویڈنس کو پڑھا، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اورل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ، اور اسی طرح ہم نے یہ پرنسپل بھی پڑھا کہ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سجیشنز پٹ بائی دا کاؤنسل during cross-examination upon the witness, these suggestions are not evidence۔ یہ ہم نے oral evidence کے زمرے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ تو آج ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کی دو میجر کائنڈز جو ہیں پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ریلیونٹ آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 2، 72، 73، 74، 75، 76، 72 سے لے کر 76 تک۔ تو ایک بات تو ویورز یہ بات پکی ہے کہ ہم نے اب تک جتنے بھی لیکچر بنائے ہیں ان میں آرٹیکل 2 کا ذکر آیا ہے، وہ اس لیے کہ ایویڈنس کو ڈیفائن آرٹیکل 2 میں کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات آتی ہے کہ ہر تقریباً لیکچر میں آرٹیکل 2 کو ریلیونٹ آرٹیکل بتایا جاتا ہے، ادروائز ڈاکومنٹری ایویڈنس اور پرائمری، اس کی دو جو کائنڈز ہیں پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنس، ان کو جو ہے آرٹیکل جو ہیں وہ 72 to 76، 72 سے لے کر 76 تک ان کو آرٹیکل ڈیل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ایز پر آرٹیکل 2(1)(b) آف QSO 1984 کیا کہتا ہے؟ All documents produced for the inspection of the court are called documentary evidence۔ کہ وہ تمام دستاویزات جو عدالت کے سامنے
अदालत को मुलाहिजा करवाने के लिए दौरान शहादत दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्टेप पर कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, और इसका रेलिवेंट आर्टिकल 72 है। इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, ए और बी। ए में जो कि आर्टिकल 72 ए को डील कर रहा है प्राइमरी एविडेंस से मुताबिक, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। अब यहाँ आर्टिकल 72 में ये कह दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव हो सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस है क्या। आर्टिकल 73 हमें ये बताता है, आर्टिकल 73 ऑफ QSO 1984 provides that documents itself produced for the inspection of the court। जिस तरह मैंने पहले कहा कि डॉक्यूमेंट्स को खुद उन दस्तावेजात जो अंडर क्वेश्चन है या शहादत में देना चाहता है कोई पार्टी, तो उसको जब वो अदालत में पेश करता है उस दस्तावेजात को, तो वो प्राइमरी एविडेंस कहलाती है। अलबत्ता वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस हो, इनएडमिसिबल एविडेंस ना हो। ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि एडमिसिबल एविडेंस कौन सी है और इनएडमिसिबल एविडेंस कौन सी है। एडमिसिबल एविडेंस वो है जिसे काबिल अनखाल शहादत कहते हैं, जो शहादत अदालत में दी जा सकती है, दाखिल की जा सकती है। और इनएडमिसिबल एविडेंस वो एविडेंस होती है जो अदालत में नहीं दी जा सकती और ना ही अदालत उसको ले सकती है। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल 73 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस, जिसको आर्टिकल 74 डील कर रहा है। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल फ्रॉम मैकेनिकल प्रोसेस, जिस तरह फोटोकॉपी मशीन से ओरिजिनल की कॉपीज बना ली जाए, और इसी तरह जो अटेस्टेड कॉपी होती है, जो बाज़ाब्ता कॉपी होती है, जो आप नकल फॉर्म अप्लाई करके नकूल एजेंसी से जो नकल लेते हैं अदालती कार्रवाई की, किसी जजमेंट की, ऑर्डर की या डिग्री की, तो वो भी एविडेंस है। और इसी तरह कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कि या तो वो असल से ही बनाई गई हो उसे देखकर, या उससे कंपेयर कर बनाई गई हो, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि एक डॉक्यूमेंट कई दस्तावेजात पर, कई सफ़हात पर मुश्तमिल होता है और उनके काउंटर पार्ट बनते हैं, उसकी 2 कापियाँ बनती हैं या 3 बनती हैं, तो उनमें से हर एक कापी दूसरे की सेकेंडरी एविडेंस है। तो इसी तरह सबसे इसमें जो अहम बात है आर्टिकल 74 में और सेकेंडरी एविडेंस में, कि oral account of documents by a person who himself seen it, कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा गवाह जिसके सामने दस्तावेजात बनाई गई हो, लिखी गई हो, तो अगर उसने उसकी मौजूदगी में वो सारा कुछ हुआ है, दस्तावेज बनाई गई है और वो देखता रहा है, जिस पर दोनों पार्टीज ने दस्तखत किए, विटनेसेस ने भी दस्तखत कर दिए, तो अगर ये कोई बात देख रहा था अपनी आंखों से, तो वो भी आकर ऑरल अकाउंट के ज़रिए, ज़बानी शहादत के ज़रिए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को वो ऑरल अकाउंट से भी प्रूव किया जा सकता है, ज़बानी शहादत से भी प्रूव किया जा सकता है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जनरल रूल तो यही है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी वो मस्ट बी प्रूव या ऑर्डिनरली बी प्रूव थ्रू प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि आगे हम यही देख रहे हैं कि आर्टिकल 75 जो 75 जो है ये मैंडेट देता है कि डॉक्यूमेंट्स ऑर्डिनरली बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, कि दस्तावेजात को अमूमन उसको पेश करके ही साबित किया जा सकता है अदालत में, उसके बारे में ऑरल अकाउंट नहीं आ सकता। लेकिन इसकी एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर ओरिजिनल लॉस्ट हो गया है, गुमशुदा हो गया है, और इसी तरह
वो डॉक्यूमेंट जो अदालत में आसानी से नहीं ले जा सकता, नहीं पेश किया जा सकता, या ऐसा पब्लिक हैवी रिकॉर्ड है जो कि नहीं पेश हो सकता, तो उसके बारे में भी ऑरल अकाउंट के ज़रिए उन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साबित किया जा सकता है। तो इस तरह हमने ये देखा आर्टिकल 75 में कि डॉक्यूमेंट जनरल रूल तो यही है कि वो खुद दस्तावेज़ात को फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट जब पेश किया जाएगा तो वो प्राइमरी एविडेंस में आएगा, लेकिन जब उसका ऑरल अकाउंट आता है या कोई अटेस्टेड कॉपी आती है या ओरिजिनल से कंपेयर करके कोई कॉपी पेश करता है किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आए। तो इसी तरह फिर हमें आर्टिकल 76 ये बताता है कानूनी शहादत आर्डर का कि केसेस इन विच कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। ऊपर हमने जनरल रूल ये पढ़ा कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड by the primary evidence and documents produce itself for the inspection of the court। ये तरीका कार देखा, लेकिन एक्सेप्शन जो कि आर्टिकल 76 में दी गई हैं वो ये है कि वो मुकदमा, वो ऐसे मामलात डिस्प्यूट कि जिनमें ओरिजिनल एविडेंस जो है वो लॉस्ट हो गई है या पेश नहीं की जा सकती विदाउट हैवी एक्सपेंसेस, तो इस तरह उसकी जगह सेकेंडरी एविडेंस की इजाज़त दी गई है। आर्टिकल 76 में उन केसेस का जिक्र किया गया है कि किन किन मामलात में आप प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं और वो काबिल अदखाल शहादत यानी एडमिसिबल एविडेंस होगी और साबित भी उसको किया जा सकता है। तो इस तरह आज के हमने इस मुख्तसर लेक्चर में ये देखा कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड व्हाट आर इट्स रेलेवेंट आर्टिकल, आर्टिकल 2 की क्लास 1, उसकी क्लास बी, और इसी तरह आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 76 तक हमने फिर इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो मेजर काइंड्स देखी कि प्राइमरी एविडेंस क्या है और किन किन मामलात में दी जा सकती है, और इसी तरह सेकेंडरी एविडेंस किन वजूहात की बिना पर और किन किन सिचुएशंस पर कि जब ओरिजिनल गुम हो जाए तो फिर वो भी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। तो इस तकरीबन मुख्तसर लेक्चर में हमने इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है कि व्यूज़ को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उससे मुतल्लिका कानून और उसकी जो दो मेजर काइंड्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, और वो सिचुएशंस ऐसी सूरत हाल कि जब प्राइमरी मौजूद ना हो तो फिर किन किन हालात में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, इसको हमने देखा और समझने की कोशिश की। तो इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह।